हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है दैट इज़ बेस्ड ऑन एपी। इससे पहले भी हम लोगों ने एपी पे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो किया था, क्वेश्चंस किया था, दोज वेर ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, 2 मार्क्स प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किया था एंड ऑल दोज क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन nth टर्म ऑफ एपी। किस पे बेस्ड था? n टर्म्स ऑफ एपी। अगेन आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे एंड अगेन द फॉर्मूला इज सेम, दैट इज nth टर्म ऑफ एपी। तो आज nth टर्म ऑफ एपी पे जो भी प्रॉब्लम्स आए हुए हैं लास्ट 10 साल में, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, जिसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट वीडियो में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के ऊपर प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें वैसे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स होगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी? वी हैव टू फाइंड द टर्म्स इन एन एपी व्हिच फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स आर 14 and 2 respectively. Sorry, minus 14. So first term is minus 14, fifth term is 2 and the last term is 62. Okay, तो कितना number of terms है? Simultaneously you should also know the correct method to write the answers in the board examination. While writing the answer is not sufficient. आप अगर सही ढंग से आंसर्स नहीं लिखोगे, you will not get marks. बिकॉज मार्क्स किस में मिलता है? स्टेप वाइज मार्किंग होता है। ठीक है, सो अनलेस एंड अनटिल यू राइट द कंप्लीट स्टेप्स यू विल नॉट गेट द फुल मार्क्स। तो यहाँ पर मैं वैसे लिखता हूँ जैसा आपसे एक्सपेक्टेड है कि एग्जामिनेशंस में कैसे लिखना है। ओके, सो लेट अस राइट द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी? सो लेट अस राइट, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म. Let A be the first term, D be the common difference, and N be the number of terms of the given AP. Okay, so you are expected to write questions, you are expected to begin like this, that A is the first term, D is the common difference and N is the number of terms. But many students, they don't write like this. Okay, now what is given? First term is minus 14. So first term A, that is equal to minus 14. Fifth term A5, that is equal to 2. Now you know that nth term, what is the formula of nth term? A plus n minus 1 d. This is the formula of nth term. So if fifth term is 2, that will be A plus 5 minus 1 d, that is 2. Or you can write A plus 4D equal to 2. Put the value of A. What is the value of A? A equal to minus 14. So minus 14 plus 4D equal to 2, which implies 4D equal to 16 and D equal to 4. So the common difference is 4. Now we have to find N. For this, last term is given. What is the last term? Last term is 62. So An is 62 because we have written that n is the number of terms of the given AP. क्या है n? n number of terms है, मतलब total number of terms n है। तो last term कौन सा होगा? nth term An, that is equal to 62. This is already given. तो क्या क्या दिया हुआ था, फिर से रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट टर्म था minus 14. फिफ्थ टर्म क्या है? 2. यूजिंग दिस फॉर्मूला आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ D एज 4. A का वैल्यू हमने minus 14 किया और सॉल्व करने के बाद D का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है।
अब यहाँ पर n निकालना है, तो nth टर्म इज 62, इट मीन्स a प्लस n minus 1d, that is equal to 62. Again put the value of a, minus 14, value of d is 4, that is equal to 62. We can write n minus 1 into 4 equal to 62 plus 14, that is 76. Minus 14 हमने वहाँ पे शिफ्ट किया है, कितना आ रहा है 76. So n minus 1 will be equal to 76 by 4, which is equal to 19, which implies n equal to 19 plus 1, 20. Okay, so how many terms are there in this AP? There are total 20 terms. So hence there are 20 terms in the given AP. So I have written all the steps here. You are also expected to write this one. Wordings may be different somewhere, but the method that should be the same. Now next question, question number 2. pH term of an AP is Q and QH term is P. तो pH term मतलब जैसे nth term होता है ना, nth term n को क्या लिखते हैं हम लोग, a प्लस n माइनस 1d. तो nth टर्म को हम क्या लिखते हैं हम लोग, a प्लस n माइनस 1d. सिमिलरली जो pH टर्म है, pH टर्म कितना है, q है. तो pH टर्म यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, nth टर्म के लिए नीचे यहाँ पे n हमने लिखा हुआ है, pH टर्म के लिए नीचे क्या लिखेंगे, p, और कितना दिया pH टर्म का वैल्यू q दिया हुआ है. ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट a प्लस p माइनस 1d इक्वल टू q. ऑब्जर्व दिस वन, nth टर्म के लिए हमने लिखा था a प्लस n माइनस 1d. तो अगर यहाँ p दिया हुआ है pH टर्म, तो क्या लिखेंगे, a प्लस p माइनस 1d, दैट इज इक्वल टू q. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट है QH टर्म इज P. ओके, QH टर्म इज P. तो QH टर्म मतलब यहाँ पे Q लिखोगे, दैट इज इक्वल टू P. अगेन दिस इज गिवन. तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा था, pH टर्म के लिए क्या लिखा था, A प्लस P माइनस 1D. तो अगर QH टर्म है तो क्या लिखेंगे, A प्लस P के प्लेस में Q माइनस 1D. And that is equal to P. So this is our second equation. Prove that nth term is P plus Q minus N. क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है. अब nth टर्म तो यही है ना, ओके, बट क्या प्रूफ करना है कि nth टर्म है P plus Q minus N. मतलब यहाँ पर A और D का वैल्यू पुट करना होगा. It means we have to find the value of A and D. How? By solving these two equations. ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन यहाँ पर. ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा, सपोज आई एम सब्ट्रैक्टिंग दिस 2 फ्रॉम 1. तो 1 से अगर 2 को माइनस करेंगे यहाँ पर, तो साइन आपको मालूम है चेंज होता है, लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़ा हुआ है. सो दिस प्लस साइन बिकम्स माइनस, दिस प्लस ऑल्सो बिकम्स माइनस, एंड दिस प्लस ऑल्सो बिकम्स माइनस. तो a माइनस a ये कैंसिल होगा. यहाँ पे क्या लिखेंगे, p माइनस 1 ये वाला टर्म, फिर माइनस, और यहाँ पर q माइनस 1 दिस टर्म, एंड दिस कंप्लीट d, और यहाँ पर क्या है, q माइनस p. ठीक है, सो व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट, दिस विल बी p माइनस 1 माइनस q प्लस 1d इक्वल टू q माइनस p. अब माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो p माइनस क्यू डी. अब यहाँ पे p माइनस क्यू डी है, तो q माइनस p को इफ यू टेक माइनस कॉमन, कैन वी राइट p माइनस q. ओके, सो फ्रॉम दिस द वैल्यू ऑफ d इज माइनस p माइनस q,
बाई पी माइनस क्यू, और ये कैंसिल करके कितना आएगा -1। तो दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद डी का वैल्यू आ रहा है -1। अब इसके बाद ए चाहिए ना, सो टू गेट द वैल्यू ऑफ ए, मेथड क्या होता है लीनियर इक्वेशन में, अगर एक्स और वाई के टर्म में हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक्स का जो भी वैल्यू आया वो तो किसी एक इक्वेशन में पुट करके वाई का निकालते हैं। वैसे यहाँ पर डी का वैल्यू किसी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और ए का वैल्यूज निकालेंगे। सपोज फर्स्ट वाले में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब 1 और 2 दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। सो दिस बिकम्स ए प्लस, ये दिया हुआ था तो यहाँ पर डी के प्लेस में -1 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा ए माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू क्यू, और ए का वैल्यू होगा p प्लस क्यू -1, ठीक है। तो d का वैल्यू हमने पुट किया -1, मल्टीप्लाई करने के बाद दिस बिकम्स a प्लस माइनस माइनस पी माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू क्यू। क्योंकि हमें a का वैल्यू फाइंड करना है, a को एज इट इज रखेंगे, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो प्लस क्यू है यहाँ पर, माइनस पी को शिफ्ट करेंगे प्लस p, और प्लस 1 शिफ्ट करके -1। So this is the value of A, this is the value of D। अब निकाल लो कौन सा nth टर्म, क्या चाहिए था nth टर्म, तो nth टर्म क्या लिखेंगे, that is A प्लस n-1D। A का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, इन प्लेस ऑफ A पुट P प्लस Q -1, n एज इट इज होगा, और d का वैल्यू कितना है -1। ओके, सो दिस बिकम्स p प्लस q -1। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस n इंटू -1 माइनस n एंड माइनस माइनस प्लस 1, तो अगेन -1 प्लस 1 गेट कैंसिल्ड एंड वी गेट p प्लस q माइनस n। ओके, यही आपको प्रूफ करना था ना कि nth टर्म इज व्हाट, p प्लस q माइनस n। सो दैट्स योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, pth qth, देखो क्या क्या है, pth qth rth टर्म्स ऑफ एन APR A B and C रेस्पेक्टिवली, और प्रूफ करना है दिस वन, ठीक है। सो वी हैव टू प्रूव, so we have to prove A into Q minus R plus B into R minus P plus C into P minus Q equal to 0. This we have to prove. ठीक है। What is given? Pth term is A. Pth term equal to A, Qth term that is equal to B, and Rth term that is equal to C। यही वैल्यू दिया है, Pth टर्म है A, Qth टर्म है B, और Rth टर्म क्या है C। अगेन लास्ट प्रॉब्लम को फॉलो करते हुए यहाँ पे इसका वैल्यू लिख देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब देखो यहाँ पर स्मॉल ABC ऑलरेडी दिया हुआ है, और अगर स्मॉल ABC ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है मीन्स वी कैन नॉट टेक दैट स्मॉल a एज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। कैपिटल A ले सकते हैं, A डैश ले सकते हैं, बट A नहीं लेंगे क्योंकि A ऑलरेडी pth टर्म मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। हाँ, कॉमन डिफरेंस को D ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर D का कोई टर्म नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, लेट A be the first term
and D be the common difference. ठीक है, तो A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर्मूला क्या था nth टर्म का, A प्लस n माइनस 1 D. दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म. तो यहाँ पे लिखोगे, अब A जो स्मॉल a था, उस स्मॉल a के प्लेस में क्या है, कैपिटल A दिया हुआ है. तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल A प्लस n माइनस 1 nth टर्म के लिए, pth टर्म के लिए n के प्लेस में p लिखेंगे हम लोग. तो दैट विल बी a प्लस p माइनस 1 d एंड दैट इज इक्वल टू स्मॉल a. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. वैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस q माइनस 1 d इक्वल टू b, और यहाँ पर a प्लस r माइनस 1 d इक्वल टू c. तो 3 इक्वेशंस लिख लिया हम लोगों ने. अब इसके बाद क्या, ना हाउ विल यू प्रोसीड. इक्वेशंस तो आ गया. लास्ट प्रॉब्लम में हम लोगों ने सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकाला था, और सॉल्व करने के लिए a और d 2 इक्वेशंस चाहिए. यहाँ 3 इक्वेशंस दिया हुआ है. ठीक है, तो ऑब्जर्व व्हाट इज टू बी प्रूव्ड. क्या ऑब्जर्व करना है, प्रूफ क्या करना है, पहले ये ऑब्जर्व कीजिए. क्या प्रूफ करना है, a इंटू क्यू माइनस आर, b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0. तो 1 बाई 1 लेट अस फाइंड दिस टर्म दिस टर्म दिस टर्म. ठीक है, फाइंड कर लेते हैं. मतलब p माइनस क्यू फाइंड कर लेते हैं, और r माइनस पी फाइंड करते हैं, q माइनस r फाइंड करते हैं. नाउ हाउ विल यू गेट p माइनस क्यू. अब यहाँ पे देख लो, अगर इक्वेशन 2 को 1 से माइनस करेंगे तो एक टर्म p माइनस क्यू का आ रहा है ना यहाँ पर. बाकी जो भी आए टर्म्स वो देख लेंगे हम लोग. ठीक है, तो 1 माइनस 2, तो 1 से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, a प्लस p माइनस 1 d इक्वल टू a. यहाँ पर a प्लस q माइनस 1 d इक्वल टू b. सब्ट्रैक्टिंग तो साइन चेंज होगा, प्लस a माइनस a गेट कैंसिल. यहाँ पर p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 d. ठीक है, तो p माइनस 1 यहाँ माइनस क्यू और प्लस 1 d, और यहाँ पर a माइनस b. सो माइनस 1 प्लस 1 गेट कैंसिल, वी गेट p माइनस क्यू d इक्वल टू a माइनस b. ठीक है, और यहाँ से p माइनस क्यू का वैल्यू क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं a बाई डी माइनस b बाई डी. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ p माइनस क्यू. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन. वैसे अगर q माइनस r चाहिए तो 2 से थर्ड को माइनस करते हैं. सो 2 माइनस थर्ड इम्प्लाइज सेम लॉजिक. तो 2 माइनस थर्ड अगर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर q माइनस r इक्वल टू b माइनस सी, सॉरी q माइनस r d इक्वल टू b माइनस सी. इट मीन्स q माइनस r इक्वल टू b बाई डी माइनस c बाई डी. दिस इज नंबर 5. ठीक है, सेम प्रोसेस से मैंने ये वाला फाइंड किया. अब एक चाहिए r माइनस पी. तो r माइनस पी कब आएगा, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम द थर्ड. सो थर्ड माइनस फर्स्ट. ठीक है, तो थर्ड माइनस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, तो a माइनस ए कैंसिल, यहाँ से r माइनस पी डी इक्वल टू, और यहाँ पर c माइनस ए. सो दिस इम्प्लाइज r माइनस पी इक्वल टू c बाई डी माइनस a बाई डी. दिस इज नंबर 6. ठीक है, सो वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ p माइनस क्यू. किसका वैल्यू मिल गया, p माइनस क्यू का. q माइनस r का वैल्यू भी मिल गया यहाँ पर, और r माइनस p का वैल्यू भी मिल गया. बट ये प्रूफ करना है ना, तो कर लेते हैं.
कैसे करोगे? Therefore, A into Q minus R plus B into R minus P plus C into P minus Q. Now simply put the value of Q minus R minus P, P minus Q here. So A, Q minus R is B by D minus C by D plus B, R minus P, that is C by D minus A by D, and value of P minus Q, that is A by D minus B by D. तो जो गिवन प्रॉब्लम है वहां मैंने Q माइनस R माइनस P और P माइनस Q का वैल्यू पुट कर दिया. अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पर? दैट विल बी AB बाई डी माइनस AC बाई डी, यहाँ पर BC बाई डी माइनस AB बाई डी, यहाँ पर AC बाई डी माइनस BC बाई डी. सो प्लस AB बाई डी माइनस AB बाई डी गेट कैंसल्ड, माइनस AC बाई डी प्लस AC बाई डी दे गेट कैंसल्ड, और ये भी वैसे कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 0. ओके, सो दैट्स द प्रूफ. वी प्रूव दैट A इंटू Q माइनस R प्लस B इंटू R माइनस P प्लस C इंटू P माइनस Q इक्वल टू 0. तो इस टाइप के जितने प्रॉब्लम्स होंगे आपको ऑब्जर्व करना होगा. व्हाट इज गिवन? pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म अगर दिया हुआ है तो इक्वेशंस फॉर्म कीजिए, एंड देन आफ्टर ऑब्जर्विंग द क्वेश्चंस यू कैन डू इट वेरी इजीली. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. वन मोर थिंग, जितना भी प्रॉब्लम्स मैंने लिखा हुआ है ये सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन से पूछा हुआ है. जैसे 2023 के प्रॉब्लम्स हैं, 2017, 2016, 2014, 2016. ओके, सो ऑल दीज आर 3 मार्क्स क्वेश्चंस. तब 4th नंबर देखते हैं. सम किसका दिया है? 5th and 9th टर्म्स ऑफ एन AP इज 30. ओके, तो जो पहला जो कंडीशन है, सम ऑफ 5th टर्म, इट मीन्स A5 and 9th term, that is A9, that is given to be 30. तो 5th और 9th टर्म का सम है 30, तो 5th टर्म को A5 लिखते हैं, 9th टर्म को A9 लिखते हैं, और सम कितना? 30. इस सारे प्रॉब्लम्स में फर्स्ट लाइन यू कैन राइट दैट A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस. एक प्रॉब्लम में मैंने लिखा था, नाउ आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, बट यू कैन राइट. ओके, प्रूफ क्या करना है? इफ इट्स 25th टर्म इज 3 टाइम्स द 8th टर्म, if its 25th term is 3 times the 8th term, find the AP. ठीक है, तो पहले जो कंडीशंस दिया हुआ ये हम लोग देख लेते हैं. अब अगर ये 2 टर्म दिया है तो क्या करेंगे हम लोग? ऑब्वियस है, A5 का वैल्यू लिखेंगे, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ A5. तो A5 का वैल्यू का मतलब क्या है? फॉर्मूला, जैसे nth टर्म है, nth टर्म क्या है? A प्लस n माइनस 1D. तो 5th टर्म कितना होगा? बहुत बार हम लोगों ने डिस्कशन किया, यहाँ n है तो यहाँ n माइनस 1 होगा. तो 5th टर्म के लिए A प्लस n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 4D डायरेक्टली लिख सकते हैं, और यहाँ पर A प्लस 9th टर्म है, so that will be A plus 8D equal to 30. A plus A, 2A, 4 plus 8, 12D equal to 30. And if you take 2 common, ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद we get A plus 6D equal to 15. So this is the first equation which we have got by taking the sum of 5th and 9th term as 30. Now next to condition था 25th term is 3 times the 8th term. तो दूसरा क्या था? 25th term मतलब 825. ठीक है,
25th term is A25 is मतलब equal to 3 times मतलब 3 into 8 term, यानी कि 3 into 8 term. So 25th term is means is equal to 3 times means 3 into 8 term is A8. ये हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पर. अगेन वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो 25 दिया हुआ है तो मतलब यहाँ पे एक कम 24 हो जाएगा. या 7 है तो 8 इज गिवन तो 8 minus 1 7D. From this we can write A plus 24D equal to 3A plus 21D और minus 2A plus 3D equal to 0. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. ठीक है. By shifting this 3A to this side, this will be minus 2A and 24 minus 21 that is plus 3D equal to 0. ये दूसरा इक्वेशन फॉर्म हो रहा है. फाइंड क्या करना था? AP फाइंड करना है. तो वंस यू नो द वैल्यू ऑफ A and D, you can very easily find the AP. So ultimately we have to solve these two equations. We have got the value of first equation and the second equation. अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे एंड thereafter you can form the AP. तो सॉल्व कैसे करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है. सो मल्टीप्लाइंग 1 by 2. So when you multiply this equation by 2, we get 2 into A is 2A plus 2 into 6 12D and 2 into 15 30. ये इक्वेशन 3 आ रहा है. नाउ कोएफिशिएंट्स ऑफ A आर इक्वल इन बोथ +2 एंड -2, मतलब साइन डिफरेंट है. तो लीनियर इक्वेशंस मालूम है आपको, दोनों को डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं. तो एडिंग 2 and 3 तो वी गेट -2A plus 3D equal to 0 and 2A plus 12D equal to 30. ऐड करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा. -2A plus 2A कैंसिल. 12 plus 3 15D and 30 plus 0 is 30. It means D equal to 2. Now put this value of D in any one of the equations. So I am putting in first equation. So from 1, okay, from 1 A plus 6D is 15. That is A plus 6 into 2 equal to 15 or A equal to 15 minus 12 that is 3. ठीक है. तो D का वैल्यू है 2 और A का वैल्यू क्या है 3. अब फाइंड क्या करना है? AP फाइंड करना है. बहुत से बच्चे सारा सॉल्व कर लेते हैं, A और D का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, but thereafter they forget to write the AP. So definitely some marks will be deducted for that. So always go through the question once again after finding the value of A and D or whatever you are finding. Check whether you have to find only that much or something else. ठीक है. तो चेक कर लेना है कि सिर्फ उतना ही फाइंड करना है या कुछ एक्स्ट्रा फाइंड करना है. तो AP लिख लेते हैं. Therefore AP is, what is AP? We write A plus D, A plus 2D, A plus 3D. ठीक है. I have written the terms of AP. Now we put the value A equal to 3. This will be 3 plus 2, 3 plus 2 into 2, 3 plus 3 into 2. So 3, 5, 7, 9 and so on. So this is the required AP. Now question number 5. What is given in question number 5? The digits of a positive number of 3 digits are in AP. तो ये 3 digit number है which are AP and their sum is 15.
The number obtained by reversing the digits is is 594 less than the original number. Find the number. तो अगर 3 डिजिट नंबर है ये, तो एपी में और उस 3 डिजिट नंबर्स का सम दिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने कि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर अगर एपी में लेना हो तो वैसे तो हम ये नंबर्स भी ले सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इस टाइप के नंबर्स, बट देयर आर सम पर्टिकुलर नंबर्स फॉर दैट ऑल्सो। कुछ पर्टिकुलर नंबर्स भी है ना, एंड वो नंबर्स कहाँ पे यूज होता है? मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में सम ऑफ डिजिट्स लिखा हुआ है, सम ऑफ 3 डिजिट्स और 4 और 5 डिजिट्स, in that case it's always better to take those particular numbers. Okay, तो नंबर्स क्या होगा? 3 डिजिट्स क्या लेते हैं हम लोग? तो लिखते हैं let the digits be a minus d, a and a plus d. क्या डिजिट्स लिए हमने? a minus d, a and a plus d. While writing this I have taken at hundredth place, this at tens place, and this at unit place. So what will be the number? नंबर क्या होगा यहाँ पर? Therefore, number formed, you can write original number formed so you know how to form the original number. अगर digits दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि कोई अगर digits आपने लिखा हुआ है, suppose you have written 56, 6 is at unit place, 5 is at tens place, so we can write it as 10 into 5 plus 1 into 6, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। Similarly, here at 100 place I have taken a minus d, so we can write 100 into a minus d, plus 10 at tens place we have taken a, so we can write 10 into a plus 1 into a plus d, ऐसे लिख सकते हैं। So this will be equal to 100a minus 100d plus 10a plus a plus d. So a का टर्म देख लेते हैं, 100 plus 10, 110 plus 1 means 111a. और यहाँ पर कितना है? minus 100 plus d, तो minus 100 plus 1, that is minus 99d. This is the original number formed. ठीक है। नंबर obtained by reversing the digits, ये भी फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर obtained by reversing the digits, अब कितना होगा? रिवर्सिंग का मतलब जो मैंने 100 प्लेस पे लिया था अब वो यूनिट प्लेस पर लूंगा, जो यूनिट प्लेस पे लिया था वो अब 100 प्लेस पे होगा, ठीक है, और बीच वाला तो एज इट इज होगा। सो दैट विल बी 100 इंटू ए प्लस डी प्लस 10 इंटू ए प्लस 1 इंटू ए माइनस डी। So that is 100a plus 100d plus 10a plus a minus d. So again 111a and plus 99d. This is the number obtained by reversing the digits. एक और कंडीशन क्या दिया था? तो कंडीशन है कि सम कितना है? 15, ठीक है। वी हैव फॉर्म द 3 डिजिट नंबर्स और सम ऑफ देयर डिजिट्स इज 15। यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ डिजिट्स 15 मतलब a माइनस डी
plus a plus a plus d, that is equal to 15. Remember, this is the number, ये नंबर मिला कैसे, जो जिस प्लेस पे था उस प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद. बट डिजिट्स क्या होता है, a माइनस डी a प्लस डी. लाइक इन दिस केस 56 इज द नंबर, बट डिजिट्स आर 5 and 6. 5 and 6 आर डिजिट्स. तो सम ऑफ डिजिट्स मतलब ये तीनों को ऐड करके कितना दिया हुआ है, 15. सो फ्रॉम दिस वी गेट a प्लस a 3a इक्वल टू 15 और a इक्वल टू 5. सो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 5. दूसरा कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट कंडीशन तो हो गया. सेकेंड है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मीन्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स. कौन सा नंबर है, ये वाला है ना, यही नंबर है. सो 111a प्लस 99d. ठीक है. सो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इन दिस नंबर इज मतलब इक्वल टू 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. तो कितना कम है ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर कितना है 11a माइनस 99d. और इससे ये कितना कम है, 594 लेस है, लेस मतलब माइनस करेंगे तो माइनस 594. ओके. अगेन देख लो, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यही नंबर है विच वी हैव ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, इज मीन्स इक्वल टू 594 लेस देन. तो इक्वल टू के उधर माइनस 594 लिख लेते हैं. अगर 594 मोर देन लिखा रहता तो प्लस 594 लिख देते. और लेस देन व्हाट, लेस देन द ओरिजिनल नंबर. तो ओरिजिनल नंबर क्या था, दिस वन इज द ओरिजिनल नंबर. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो 111a दैट गेट कैंसिल. वी गेट 99d प्लस 99d इक्वल टू माइनस 594. एडिंग दिस 198d इक्वल टू माइनस 594 और इसको कट करेंगे. ठीक है. तो कितना आएगा d का वैल्यू, d इक्वल टू 3, सॉरी d इक्वल टू माइनस 3. सो सॉल्विंग दिस वी हैव गॉट d इक्वल टू माइनस 3. वी हैव टू फाइंड द नंबर. तो a का वैल्यू आ गया 5 और d का वैल्यू कितना आ गया माइनस 3. तो नंबर्स क्या होगा चेक कर लेते हैं. तो ओरिजिनल नंबर क्या था, नंबर इज दिस वन, दिस इज द ओरिजिनल नंबर 111a minus 99d means 111a is 5 minus 99 into minus 3. So 555 plus 297. Okay. So what is the answer? 852. So this 852 is the original number. अगर कहीं भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप बता सकते हैं. वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. ये जो प्रॉब्लम है 2016 में 3 मार्क्स के लिए आया था और इसके बाद जो 2 प्रॉब्लम्स हैं ये 5 मार्क्स के लिए आए थे 2020 और 2019 पे. तो सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 6. Divide 56 in 4 parts in AP. 56 in 4 parts in AP such that ratio of product of their extremes to the product of means is 5:6. तो सबसे पहले divide 56 in 4 parts. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि 56 को रियली डिवाइड करना है. It simply means that you have to take 4 numbers in AP whose sum is 56. ठीक है. तो डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स का क्या मतलब है कि आपको एपी में 4 नंबर ऐसा लेना है जिसका सम कितना होगा 56 होगा. और 4 नंबर क्या क्या लेते हैं, 4 नंबर डिस्कस किया था हम लोगों ने. वी टेक दैट एज a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d. ओके. तो लिखते हैं लेट द 4
numbers in AP be a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d। तो ये 4 नंबर हमने लिया। अब यहाँ जो फर्स्ट और लास्ट नंबर जो है, फर्स्ट और लास्ट नंबर उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। ठीक है, यहाँ लिखा है ना सच दैट रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स। तो फर्स्ट एंड लास्ट दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम्स एंड द टू मिडिल टर्म्स सेकेंड एंड थर्ड दे आर कॉल्ड एज मीन्स। सो इन दिस प्रॉब्लम द मीनिंग ऑफ एक्सट्रीम इज गिवन। एक्सट्रीम का मीनिंग दिया हुआ है कि फर्स्ट और फोर्थ टर्म, और मीन्स का मीनिंग दिया है कि सेकेंड और थर्ड टर्म। बट हो सकता है एग्जामिनेशन में नहीं दिया हो, तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ एक्सट्रीम्स एंड मीन्स। तो पहला कंडीशन क्या है? 4 नंबर तो ले लिया हमने। ये 4 नंबर लेना कैसे था? ये 4 नंबर ऐसे लेना था कि उसका सम कितना होना चाहिए? 56। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d एंड दैट शुड बी इक्वल टू 56। कितना होना चाहिए? 56 होना चाहिए। अब देखो माइनस 3d प्लस 3d गेट कैंसिल, प्लस d माइनस d गेट कैंसिल एंड a कितनी बार है? 4 बार। सो 4a इक्वल टू 56। तो a कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद a का वैल्यू कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। अब जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, रेशियो, किसका रेशियो लेना है? प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम। तो a माइनस 3d ये फर्स्ट टर्म हो गया और a प्लस 3d। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। टू मतलब रेशियो में कैसे लिखते हैं? ये ऊपर वाला हो गया। तो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब नीचे आपको प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी सेकेंड और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट लिखना है। दैट इज a माइनस डी इंटू a प्लस डी एंड कितना दिया है रेशियो? दिस रेशियो इज गिवन टू बी 5:6। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, तो बस सॉल्व करना है। दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है? मालूम है आपको, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इन प्लेस ऑफ a वी आर हैविंग a, तो यहाँ पर a स्क्वायर लिखोगे माइनस बी स्क्वायर मतलब 3d का स्क्वायर। वैसे यहाँ पर a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5/6। a का वैल्यू मालूम है 14, सो पुट द वैल्यू ऑफ a। सो 14 स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर बाई अगेन 14 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 5/6। सॉल्व कर लेते हैं। ये 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर दैट इज 196 माइनस 9d स्क्वायर। ठीक है, नीचे अगेन 196 माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 5/6। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 1176 माइनस 54d स्क्वायर इक्वल टू 980 माइनस 5d स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पर? 1176 माइनस 54d स्क्वायर इक्वल टू 980 माइनस 5d स्क्वायर। अब यहाँ से जो टर्म्स हैं 1176 माइनस 980 दिस इज इक्वल टू 54d स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। तो 980 अगर यहाँ से माइनस करेंगे सो दिस विल बी लेफ्ट विथ 196 हियर एंड दिस विल बी 49d स्क्वायर। इट मीन्स d स्क्वायर कितना आ जाएगा?
डी स्क्वायर विल बी 4 और डी का वैल्यू कितना होगा +-2, ठीक है। तो सॉल्विंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ डी एज +-2 और फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था 4 नंबर्स जिसका सम कितना 56। तो देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू है 14 और डी का वैल्यू क्या है +-2, तो नंबर्स क्या क्या होगा, when a equal to 14 and d equal to 2 the numbers are, ठीक। तो पहला नंबर कितना है a-3d, तो a-3d मीन्स 14 - 3 × 2 यानी 8 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर इज a-d, सो 14 - 2 12। थर्ड नंबर इज a+d, so 14 + 2 that is 16, and fourth number is a+3d, so 14 + 3 × 2 20, ठीक है। and when we take the other numbers, when a equal to 14 and d equal to -2, in this case the numbers are, इस केस में नंबर्स क्या होंगे, a-3d मीन्स 14 - 3 × -2 that is 20, a-d 14 - -2 that is 16, a+d means 14 + -2 12, and a+3d, so 14 + 3 × -2 that is 8. So what are the numbers? Numbers are 8, 12, 16 and 20. तो यहाँ क्योंकि सिर्फ 4 नंबर्स लिखना है तो आप सिर्फ कोई भी एक निकालोगे तो हो जाएगा, बट अगर आपको AP लिखना होता तो दोनों टर्म्स निकालने होंगे। तो AP में 8, 12, 16, 20 डिफरेंट होगा एंड 12, 16, 12, 8 ये सॉरी 20, 16, 12, 8 डिफरेंट होगा, ठीक है। So write the final answer. Hence, the numbers are, क्या क्या numbers है, 8, 12, 16 and 20. These are the required numbers. So अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. 7 में क्या है, sum of 4 consecutive numbers is 32. तो स्टार्ट वैसे ही करना है जैसे यहाँ 4 टर्म्स लेना था, यहाँ भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेना है। तो यहाँ लिख लेते हैं, लेट द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन AP be a-3d, a-d, a+d and a+3d। सम कितना दिया 32, लास्ट प्रॉब्लम में सम कितना था 56। तो यहाँ भी जैसे हमने ऐड करके इक्वल टू 56 लिखा था, यहाँ पर भी ऐड करके क्या लिखेंगे 32। तो a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d that is equal to 32. So cancel, 4a equal to 32 and the value of a is 8. कितना हो गया a का वैल्यू 8। अब नेक्स्ट कंडीशन है रेशियो ऑफ, इसका रेशियो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो अगेन सेम प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मतलब a-3d इंटू a+3d, ठीक है। टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स, किसका है प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। तो मिडिल टर्म्स यानी ये दोनों था, तो a-d इंटू a+d दैट इज इक्वल टू 7:15। कितना है ये 7:15। तो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, जैसा ये हमने सॉल्व किया था ये भी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट है। यहाँ लिखा था डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स और यहाँ लिखा है कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 32। तो दोनों का मीनिंग सेम है, प्रोसेस भी सेम है। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स लिखा था, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म लिखा हुआ है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म भी को तो एक्सट्रीम्स बोलते हैं, तो यहाँ हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किया।
एंड यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स, यहाँ लिखा था प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब मिडिल टर्म, सेकेंड और थर्ड टर्म, तो वर्डिंग्स डिफरेंट है बट मीनिंग सेम है, ठीक है। आई होप आफ्टर दिस यू कैन सॉल्व, इसके बाद वैसे ही सॉल्व करना है जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हमने सॉल्व किया था। नाउ लेट अस टेक द लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। Which term of the AP will be minus 82? AP क्या AP दिया हुआ है? So which term is minus 82? तो मान लेते हैं ना कि पहली चीज तो यहाँ लिख लेते हैं कि A का वैल्यू कितना है, A इज -7, D कितना है -12 -7 मीन्स -12 + 7 = -5, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हो गया A -7, कॉमन डिफरेंस है -12 माइनस फर्स्ट टर्म -7, so this becomes -12 + 7, that is -5. And which term is -82? So let us assume that nth term is -82. Okay, so let its nth term मतलब n be -82, ठीक है। It means n equal to -82. फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। पहले भी इस तरह की प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आपने सॉल्व किया हुआ है, तो सॉल्व कर लेते हैं। नाउ nth टर्म मीन्स a प्लस n minus 1d, that is equal to -82. Put the value of a -7, value of d -5, this is equal to -82. तो n minus 1 into -5, this will be equal to -82 -7 प्लस शिफ्ट होगा, so this is equal to -75. So what is n minus 1? n minus 1 will be 15 और n equal to 16. तो n का वैल्यू 16 आ गया, मीन्स विच टर्म इज -82? इट मीन्स 16th टर्म इज -82. Therefore 16th term of the AP is -82. So this is the first part. ये दोनों प्रॉब्लम्स 5 मार्क्स के लिए हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट पार्ट था कि विच टर्म इज -82, उसका आंसर आ गया 16 टर्म इज -82. इज -100 एनी टर्म ऑफ द AP? अब ये चेक करना है कि -100 कोई टर्म है या नहीं है, एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो -100 टर्म है कि नहीं, ये शो करने के लिए nth टर्म को क्या लेंगे -100, और फिर से n का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर n कोई इंटीजर आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तब तो ठीक है, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो चेकिंग फॉर -100, इसके लिए चेक कर लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, लेट n इक्वल टू -100। तो nth टर्म क्या लिया हम लोगों ने, -100 लिया। तो यहाँ लिखोगे a प्लस n minus 1d इक्वल टू -100, वैल्यू पुट कर लेते हैं, -7 प्लस n minus 1, d का वैल्यू कितना है -5 इक्वल टू -100. From this we can write n minus 1 into minus this equal to -93. n minus 1 will be equal to 93/5. और यहाँ से तो n minus 1 equal to 93/5 and n equal to 93/5 प्लस 1 यानी कि 98/5, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो यू गेट 193/5, ठीक है। मतलब n का जो वैल्यू आ रहा है एक इंटीग्रल वैल्यू तो है नहीं, ये
नेचुरल नंबर्स नहीं है, होल नंबर्स नहीं है, इंटीजर्स नहीं है. So this is not possible. Minus 100 will be a term of this one if the value of n is some positive integer. Okay, तो यहाँ क्या लिखते हैं? Since n is not a positive integer, therefore minus 100 can never be any term of the given AP. ठीक है, तो n का वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो -100 इसका कभी भी टर्म नहीं हो सकता है. बट n का वैल्यू अगर कोई पॉजिटिव नंबर आता 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तब हम क्या बोलते हैं? तब हम बोलते हैं दैट -100 इज अ टर्म ऑफ दिस AP. और कौन सा टर्म होता? n का जो भी वैल्यू आता, मान लो n का वैल्यू 20 आ रहा है, इट मीन्स दैट -100 इज द 20th टर्म. n का वैल्यू 25 आ रहा है, मतलब -100 इज द 25th टर्म ऑफ द AP. ओके, सो होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सबको शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए. इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दैट विल बी ऑन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP. इससे पहले जो वीडियो था और इस वीडियो, इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन जो भी सॉल्व किए हैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चंस. एंड ये जो क्वेश्चंस हैं लास्ट 10 ईयर्स में आए थे एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन व्हाट nth term of AP. So in the next video we will solve problems which are based on sum of n terms of the AP. So that's it for today. Thank you. Thanks for watching.